आप सब जानते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी है। और ये कैपिटल सिटी बहुत ही एक नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जिसमें अर्बन किया जा रहा है, जिसमें कि अर्बन प्लानिंग के सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया गया है। तो अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज constructed on the river Krishna. That will be a bridge. It's a long bridge. It will be 3.2 kilometer length, and it will be one of the major bridges of Indian Railways. This project is a very ambitious project. This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi, and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. If you recall the old days, when a city was getting constructed, like Gandhinagar was constructed, Gandhinagar, Gujarat ke capital naya jab bana, that time for the 40 years there was no railway connectivity to it. That was the way our country was functioning in the period before 2014. Now things have changed. As the city is getting developed, साथ ही साथ उसका रेलवे कनेक्टिविटी का काम चालू हो गया। यानी शहर जैसे बनेगा वैसे ही इसका रेलवे कनेक्टिविटी भी साथ ही साथ बन के आ जाएगा। कई सारे अच्छे कल्चरल हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो भी कनेक्ट होंगे इससे। अमरलिंगेश्वर स्वामी टेम्पल है, अमरावती स्तूपा है, ध्यान बुद्धा स्टैचू है, ओंडावली केव्स हैं, और जो कई पोर्ट्स हैं, मछलीपट्टनम पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट, वाइजैक पोर्ट, इन सब के लिए कनेक्टिविटी होगी। बड़ा प्रोजेक्ट है। इट विल क्रिएट 19 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट। इट विल ऑल्सो सेव 6 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स वेरी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, एंड दैट मीन्स इट इज़ लाइक इक्विवेलेंट ऑफ प्लांटिंग 25 लाख ट्रीज। इतना इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस है। दिस वॉज अप्रूव्ड बाय Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in the cabinet today, and this is one of the long cherished dreams of the people of Andhra Pradesh. The location of the line is like this. If you look at the river Krishna, take river Krishna as the reference point for explaining. This is the river Krishna. If you see the green area, this is the area earmarked for developing Amravati capital city. Across the river is a very nice Kondapalli reserved forest. So that way environmental as well as the urban planning matters are in a sense balanced very nicely in this entire project. Then the line which will be, and we actually did multiple combinations and permutations. We looked at many options, and finally we selected this particular alignment in consultation with the state government. The line will be basically connecting Irupulam to Namburu, and the stations will be Pedapuram, Chinnarao, Pelam, Gottumakkal, Paritala, Kotapalli, Vadamanu, Amravati, Tadikona, and Koppavaram. There will be a multimodal logistics hub at Paritala, this just beyond the river, right, north of river. And I want you to understand how this will connect to all the 5 big cities. There you see Vijayawada के पास में अमरावती है, right? Chennai connectivity directly towards this side. Kolkata towards Howrah directly connectivity. Towards Hyderabad and Mumbai beyond connectivity via Guntur and via Kazipet also. Then via Kazipet it goes all the way to Nagpur, and then it goes to Delhi. So in a sense all the big cities will get directly connected to Amravati. This is a very important project, and bridge which is about 3.2 kilometer long, this new bridge will be constructed
ऑन द रिवर कृष्ण। मिथिलांचल में बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है, नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। ये प्रोजेक्ट है 256 किलोमीटर 256 किलोमीटर का, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर। आने वाला समय छठ का समय है, तो आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली और छठ की। और इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कैबिनेट में एक बहुत लंबे समय से जो उत्तर बिहार के हमारे सभी साथियों की जो ड्रीम थी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है। इस प्रोजेक्ट में करीब करीब 40 के आसपास तो बड़े ब्रिजेस हैं, 40 एग्जैक्ट नंबर देता हूं मैं आपको। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और आपको देता हूं एग्जैक्ट नंबर्स। और इसमें बेसिकली आप देखोगे आगे वाले पेज पे आप देखोगे नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा आपको नरकटियागंज, आप देखिए नेपाल गंडक रिवर के ऊपर वाला हिस्सा देखिए, इसमें नरकटियागंज से रेड कलर में आपको दिखाई देना चालू होगा ये कंप्लीट कॉरिडोर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से नीचे आने पे मुजफ्फरपुर और ईस्ट में जाने में दरभंगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। नॉर्थ बिहार, मिथिलांचल के सभी निवासियों को बहुत अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप देखो ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहां पर सिलीगुड़ी के आगे सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आज जो ये पर्पल में दिखाई दे रहा है आपको हाजीपुर, पटना, ये दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के पैरेलल एक नया कॉरिडोर मिलेगा ट्रांसपोर्ट का, जो कि सिलीगुड़ी, अभी आप सिलीगुड़ी से अगर ऊपर की तरफ देखना चालू करो, ये यहाँ पे अलुआबारी रोड जंक्शन लिखा हुआ है, ठाकुरगंज लिखा हुआ है, ठाकुरगंज से अररिया कोट, अररिया कट, फोरबेसगंज, वहां से हमारा सरायगढ़, राघोपुर आते हुए दरभंगा, ये सारा कॉरिडोर, और आगे दरभंगा से टुवर्ड्स नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी रास्ते में आते हुए फिर मुजफ्फरपुर से जोड़ते हुए और आगे जाके गोरखपुर में मिलना। ये कंप्लीट बड़ा एक ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर बन रहा है जो आज अप्रूव हुआ है। और ये कॉरिडोर पूरे के पूरे उत्तर बिहार, मिथिलांचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश के कई जिले, इन सब के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट का साधन होगा। जो जिले इससे कवर हो रहे हैं उनके नाम मैं बोलता हूं आपके लिए। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये सब जिले इससे कवर होते हैं। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और हमारे कई बड़े, हमारी संस्कृति की पहचान के कई बड़े सेंटर्स को ये प्रोजेक्ट जोड़ता है। अयोध्या जी को जोड़ेगा मां जानकी के जन्म स्थान से, राइट, और काठमांडू की कनेक्टिविटी इससे आती है, जनकपुर की कनेक्टिविटी आती है और लुम्बिनी की कनेक्टिविटी इससे आती है। यानी हमारे सांस्कृतिक इतिहास की जो बहुत बड़ी, हमारी सभ्यता के बहुत बड़े जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स को ये रेलवे लाइन जोड़ती है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4,553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 4,553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है।
It's a huge project, 4,553 crore, 256 kilometers, 87 lakh human days employment create होगा इसमें काम के दौरान, and 162 crore kilogram of carbon dioxide will be saved. 162 crore kilogram, which is, अगर आप उसको इक्विवेलेंट कितने पेड़ लगाए उसके बराबर में अगर कंपेयर करो तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ प्लांटिंग 6.5 करोड़ 6.5 करोड़ ट्रीज के बराबर ये इससे एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलेगा। पूरे नॉर्दर्न बिहार मिथिलांचल में फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, कंटेनर्स, इन सब का मूवमेंट इससे आसान हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा मिथिलांचल को वो मिलेगा कि जो ईस्टर्न कोस्ट पे ये सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं, वाइजैग से लेके पारादीप, हल्दिया, कोलकाता पोर्ट, धामरा पोर्ट, गोपालपुर पोर्ट, इन सब, यहाँ पे नीचे और थोड़ा सा जाओ तो काकीनाडा पोर्ट, इन सब पोर्ट्स के लिए एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी मिथिलांचल को। यानी मिथिलांचल में कोई इंडस्ट्री अगर आना चाहे अब तो उनके लिए एक पोर्ट कनेक्टिविटी का बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मिथिलांचल के ट्रेड, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इसके लिए बहुत बड़ा इससे पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आएगा। आपको ध्यान होगा पिछले 2-3 कैबिनेट पहले एक कई सारे जो मिसिंग लिंक्स थे, उड़ीसा, झारखंड, बिहार को कनेक्ट करने वाले और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करने वाले कई जो मिसिंग लिंक्स है वो सारे एक एक करके अप्रूव हुए थे। आज का ये प्रोजेक्ट बड़ा एक कॉरिडोर, और उसके साथ अगर आप देखो उन सब लिंक्स को, रेलवे लाइंस के लिंक्स को जोड़ो तो ये कंप्लीट बिहार के लिए और विशेषकर उत्तर बिहार के लिए एक बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनके उभरेगा।